सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर आपकी आवाज। सर आपकी आवाज। This is our first class on current of electricity, and we are starting this topic. We had discussed this topic in our theory classes. A resistor and a filament lamp are connected in series with a power supply. The IV characteristics of the resistor and of the lamp are shown below. The potential difference across the resistor is 3.3 volt. It's a series combination. Series combination में क्या होता है? Series में क्या होता है कि voltage is divided and conserved. I'm reading the current here. और सीरीज में जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है. सीरीज में जो करंट होता है, सॉरी, सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है एंड वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड. सो आई एम रीडिंग फॉर द रेजिस्टर, आई एम रीडिंग द करंट एंड यू कैन सी द करंट इज 0.3. तो अब मैं क्या करूं कि 0.3 इसमें भी होगा. ठीक है, इसमें आके मैं करंट को रीड कर लूं, क्योंकि सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है, लेकिन वोल्टेज जो है ना वो डिवाइड होता है, कंजर्व होता है. सो आई एम रीडिंग फ्रॉम दिस स्केच. Now you have to see this simple working, but now the value is required to be read from the second graph. I can say it is 4.2 volt. He says, what is the resistance of the lamp? Now I have the voltage across, I have the voltage across the lamp, I have the voltage across, the current is 0.3. Across the lamp it is 4.2 volt. Across the resistor is 3.3 volt. Now I have made a circuit और मुझे निकालना क्या है, ये देखो, मुझे निकालना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प. अब मैंने आपके लिए वर्किंग कर दी. अब आप मुझे बताओ कि शुड आई ऐड द टू वोल्टेजेस एंड व्हाट शुड आई डू, और शुड आई यूज ओम्स लॉ. Formula is V is equal to IR. R is equal to V upon I. The voltage across the resistor is 3.4 volt, 3.3 volt. Sorry, across the lamp. Voltage across the lamp is 4.2 volt and the current is 0.3. I have done the working and I want everyone to please take part in this calculation. MCQs की कैलकुलेशन हमेशा लिख के करो, और अब मुझे तुम लोग हेल्प करो और कैलकुलेशन करके बताओ कि आंसर क्या होगा. $14. Good, Ali. We got an answer 14 ohm. The answer is D. I move to my next question. These are new questions, and a student describes potential difference as the energy transferred per unit charge. A student describes potential difference as the energy transferred per unit charge. Which statement, अच्छा ये उसने कहां से पिक किया? वोल्टेज का फॉर्मूला होता है W upon Q, which means जूल पर कूलम. ये उसने यहां से उठाया. Which statement about the energy transfer is correct? अब ये वो सवाल है which are elimination questions. You have to read every part. You have to read every part
It is from electrical energy into other form. जिन लोगों को पीडी का कॉन्सेप्ट याद है, आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक करवाया था पीडी. I have told everyone should remember that potential difference is a measure of the effort by which electrical energy is converted into other forms. It is from other forms to into electrical. ये तो गलत है क्योंकि ये तो असल में EMF होता है. It only takes place inside a power supply. ये भी गलत है. पावर सप्लाई के बाहर भी पीडी आता है. दो पीडी होते हैं ना, एक V होता है स्मॉल v और एक कैपिटल V. It only takes place inside resistor. ये भी गलत है. ये दोनों होते हैं. इसके लिए बोलते हैं स्मॉल v, इसके लिए बोलते हैं कैपिटल V. तो ये जो पार्ट्स हैं ये सारे गलत हैं और आंसर इज ए. Now you see this question. In the circuit shown, a fixed resistor X. In the circuit shown, important points को underline कर दिया करो. अगर तुम्हारे पास कोई गैजेट हो जिस पे तुम क्लास ले रहे हो तो उसी पे सॉल्व कर लो, और अगर नहीं तो तुम एक कॉपी साथ रख लो और अपनी पास पेपर की बुक रख लो. अगर तुम साथ साथ सॉल्व करोगे तो तुम्हारी ग्रिप आएगी, and gradually you will understand these difficult topics. Otherwise MCQs are very challenging. You can see, imagine the threshold of paper 1 is around 22, 23 out of 40. A fixed resistor X is connected in series with a battery and a variable resistor. The power dissipated in resistor X is 7.2 watt. इसके पास power आ रही है 7.2 watt when a current of 3 ampere passes through it. Current is coming 3 ampere. Okay, the variable resistor is adjusted so that the power dissipated in X increases by 50%. There is an increase by 50%. What is the new current in the circuit? अब ये जरा challenging question है. इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि हम सर्किट में वोल्टेज पे काम कर लें, वोल्टेज निकाल लें. दूसरा पावर और करंट का रेशियो होता है, बिकॉज सीरीज सर्किट में करंट सेम है. अगर इसमें 3 एम्पियर होगा तो इसमें भी 3 एम्पियर होगा. जब करंट बदलेगा तो दोनों में बदल जाएगा. सो वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू करंट इन द सर्किट. इस तरह के सवालों का आप रेशियो से कर सकते हैं. एंड the resistor X is 7.2 watt. अब 50% इंक्रीज कैसे करूं मैं? जो लोग मैथ्स में अच्छे हैं, देखो उनको मैं याद दिलाऊंगा कि 50% इंक्रीज का मतलब मैथ्स में क्या होता था. वो सवाल आते थे ना, देयर वाज अ डिस्काउंट ऑफ 50%, देयर इज अ प्राइस इंक्रीज ऑफ 50%. तो असल में 50% इंक्रीज कैसे करूंगा, केयरफुली देखिएगा. 7.2 into 150 upon 100. This will give me the 50% increase in power. This is the straight way which I'm using. Otherwise, I can make a ratio also. Now, you can find for me the new power. I will use the power and I will make a ratio, or I will use the formula. अब तुम लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूं. पावर, अच्छा पहले पावर निकाल के मुझे बता दो. First you get the power for me. .8. The power is 10.8. Now I have a formula. P is equal to I square R. Resistor is the same. I'm working on X. Rheostat is there, but I know that if I find the current through X, it will be the same current through the resistor. ठीक है. तो अब इसको मैं अगर सर्किट को बनाऊं तो P1 अपॉन P2, जो मैंने क्लास में भी समझाया था कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, रेशियो मेथड. I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर. नाउ दिस रेजिस्टर आई एम यूजिंग X. नाउ एनीवन कैन टेल मी, कोई आप में से मुझे बताएगा कि क्या मैं रेजिस्टर को R1 R2 लिखूं, या ये जो रेजिस्टर है ये सेम है, रेजिस्टेंस इज सेम. I'm talking about X. So should I consider it, or it will be cancelled out because
it is the same resistance. So it, if you can see here, it is the same resistance. It will be cancelled out. Now you have to put the power, you have to put the current. My older power was 7.2. The new power is 10.8. The older current is 3 and the new current is I2. It's a whole square game. Remember, whole square कैसे हटता है? अगर आप whole square हटाओगे ना तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा. 7.2 upon 10.8 is equal to 3 upon I2. अब तुम इसको सॉल्व करो, यहां तक पहले कॉपी करो, सॉल्व करो और मुझे बताओ कि व्हाट इज द करंट. मुमताज 150 की लॉजिक एएस ओ लेवल मैथ्स है ना. अगर तुम किसी चीज को 50% बढ़ाओ तो कोई चीज ओरिजिनल में कितनी होती है? 100% होती है ना. हमने ओ लेवल मैथ्स में सीखा था ना. 100% में वो जो याद है इंटरेस्ट के सवाल आते थे, 100 में 50% ऐड कर दो तो 150 हो जाएगा. अगर तुम्हें ये मेथड कंफ्यूज करे तो ओ लेवल में वापस जाकर एक और कॉन्सेप्ट सोचो. किसी चीज को 50% कैसे बढ़ाते हैं? उसकी वैल्यू रखकर उसमें 50% निकाल के फिर ऐड कर दो. बात वही है. तुम 3 एम्पियर का 50% निकालो, वो 1.5 आ जाए. वो जो वैल्यू आएगी वो उसमें ऐड कर दो. 7.2 का 50% निकालो 7.2 का और उसमें ऐड कर दो. दोनों तरीके सही है. अच्छा, अब मुझे कोई हेल्प करे. करंट की वैल्यू आई एम वेटिंग इफ एनीवन कैन फाइंड करंट फॉर मी. One student got the answer for me and he says it is 3.68 ampere. 3.68 is very close to this part. A cable of length L consisting of 2 wires is used to connect a 12-volt power supply of negligible internal resistance to a lamp shown. 2 तारे लगी हुई हैं और बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की. The PD across the lamp is 10.5 volt and the current in the wire is 2.5 ampere. Each wire is made of metal of resistivity. This has a cross-sectional area. This, what is the length L of the cable? अब ये उसने पूरी लेंथ L हमसे पूछी है. अब ये जो सवाल है इसको एक लॉजिक से सोचो कि I have given 12 volt in the input. Then why 10.5 volt is coming here? What happened to the remaining? What happened to the remaining 1.5? So if I subtract 12 minus 10.5 is equal to, I can say 1.5. ठीक है, 1.5 volt is missing. जब हमने किरचॉफ का चैप्टर करा था डीसी सर्किट और एसी सर्किट वगैरह, तो आई टोल्ड यू दैट सर्किट में तारों पर भी वोल्टेज होता है, बट जनरली वी डू नॉट कंसीडर इट अंटिल एग्जामिनर सेज. नाउ एग्जामिनर इज ट्रैपिंग अस हियर बिकॉज वोल्टेज कहाँ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं. देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस, सो इट मींस some resistance is going, some resistance is being dissipated on the wire. हमें करंट पता है. अब जरा देखो रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन E. नाउ अब ये बताओ कि मेरे पास 1.5 वोल्ट बचा. ये 2 तारें लगी हुई हैं, एक आने वाली तार है, लाइव वायर है, और एक जाने वाली तार है. देयर आर 2 वायर्स एक्चुअली व्हिच आर इन सीरीज. सो अब मुझे बताओ कि जो वायर
वायर एल है उस पे वोल्टेज कितना लूं? 1.5 इज टोटल मिसिंग वोल्टेज। तो क्या मैं अगर आपकी सिंप्लिसिटी के लिए लेबल कर देता हूं ए बी और पी क्यू। अब मुझे बताओ कि क्या ए बी और पी क्यू दोनों पर वोल्टेज आएगा? तो मेरे पास तो 1.5 वोल्ट मिसिंग है। हाउ मच वोल्टेज विल बी टेकन बाय ए बी? कैन एनीवन टेल मी हाउ मच वोल्टेज विल बी टेकन बाय ए बी? शाबाश, think about it. 3.68, 1.5 एम्पियर, 1.5 ए, 1.5 क्या मतलब? नहीं, एक्चुअली आई थिंक आई कुडंट एक्सप्लेन द क्वेश्चन परहैप्स। देखो, मेरे पास जो रिमेनिंग वोल्टेज है ये वो वोल्टेज है जो वायर पे जाएगा। ठीक है, दिस इज द वोल्टेज ऑन द वायर, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। दो तारे लगी हुई हैं, इन दोनों तारों पे टोटल 1.5 जाएगा। इट्स अ सीरीज सर्किट, दो तारे और लैंप सीरीज में। तो जो एक वायर है, ये आप उसके साथ ए लिख रहे हो मुमताज। 1.5 ए क्या चीज है? ए नहीं, आप शायद वी लिखना चाह रहे हो, डबल चेक करो। ठीक है, अब मेरे पास ये सोचने की बात है, जरा मेरे साथ गौर से देखिएगा, सो आई कैन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। लुक केयरफुली, सी हियर। अगर मैं यहां से यहां तक 1.5 वोल्ट दे दूं, तो फिर मैं इस पर क्या दूंगा? इसको, इसका तो मुझे, इसका तो 10.5 देना है। तो फिर मैं नीचे वाली तार को क्या दूंगा? तीन, ये दोनों तारे सीरीज में है ना। अगर ऊपर वाली तार को 1.5 वोल्ट मिल गया तो नीचे वाली तार को क्या मिलेगा? तो इसका मतलब है ये वोल्टेज अभी डिवाइड होगा। दो तारे हैं ए बी, देखो लुक द क्वेश्चन, इट कंटेन्स टू वायर्स। जो वोल्टेज मेरे पास है वो एक है, तो 1.5 अपॉन 2, yes, 0.7 volt. This is the right point to understand. So it means it means 0.75 volt. So now we are on the point. We have the voltage, we have the current, and we can now find the resistance which is needed for the calculation. And we have the area, we have the resistivity in hand, and we have the area, but I do not have the resistance. I need to find the L, the length. तो मुझे अब उसमें यहां देखो L निकालना है ना, तो L का फॉर्मूला क्या होगा? R E अपॉन रेजिस्टिविटी। सारी चीजें रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस कैसे निकालूं? R इज इक्वल टू V अपॉन I। V कितना है? 0.75 और करंट है 2.5। इसको रख के जरा R निकाल के दो, साथ साथ वर्किंग करो, लिखो, और तुम देखोगे कि इंप्रूवमेंट आएगी। वरना दिस चैप्टर, दीज चैप्टर्स विल ऑलवेज ट्रैप यू। जीरो पॉइंट थ्री। ठीक है, अब हमारे पास पूरा डेटा आ गया। रेजिस्टेंस है, एरिया है और
रेजिस्टिविटी भी है। सारी वैल्यूज पुट करो एंड गेट द आंसर फॉर मी। शाबाश। So anyone can get the answer for me for resistivity? Quickly solve and we need to find the length. अब इसको solve करो, सारी values तुम्हारे पास हैं, बस तुम्हें ये formula apply करना है। No one is answering. Value put करो यार, जल्दी से solve करो। देखो अगर आप कैलकुलेशन में ही हेल्प नहीं करोगे तो फिर तो ये मसला खराब है ना। पॉइंट थ्री आ रहा है। पॉइंट थ्री कैसे? पॉइंट थ्री आप फाइनल आंसर बता रहे हो या रेजिस्टेंस पॉइंट थ्री है? एक मिनट, आई थॉट यू टोल्ड मी द रेजिस्टेंस इज पॉइंट थ्री। व्हाट वाज द रेजिस्टेंस देन? Ali, this row, this is the row, the resistivity symbol of O level physics है ना? O level physics में symbol था ना? It's a symbol for density in physics. It's a symbol for resistivity in physics. ये R की वैल्यू दोबारा चेक कर दें। आई थिंक मुमताज ने जो वैल्यू बताई है वो किसी और चीज की है।
अच्छा वो तो 0.3 आ रहा है। I have shown the calculation and a student helped me also, but everyone is not answering, everyone is not taking part in calculation. This is a problem. देखो MCQs की वर्किंग का साइज तो देखो स्क्रीन पर, अगर तुम कैलकुलेशन में सपोर्ट नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, ओरल देखते रहोगे, तो ये तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, मसला ऐसे ही रहेगा। Two resistors R1 and R2 are made from wire of the same material. They are connected in parallel to each other in a circuit as shown. हाँ, 10.6 is the right answer. The diameter of R2 is half the diameter of R1. The resistance of R2 is 3 times the resistance of R1. इस चैप्टर में देखो ज्यादातर फॉर्मूलाज ओ लेवल के हैं, सो तुम्हें थोड़ा सा जहन पे जोर डालना है। मैंने तभी वो फॉर्मूलाज भी आपको भेजे थे और मैंने एक रिवीजन वीडियो भी भेजी थी। मैंने कहा था फॉर्मूला याद करो, क्योंकि उसके बगैर अगर तुम ओ लेवल के फॉर्मूला भूल गए तो फिर तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। पहले दो रेजिस्टर्स है ना पैरेलल में, फॉर्मूला क्या था, जब सेम हो ना, सेम मटेरियल। This is the formula. अब देखो रेजिस्टेंस ऑफ 2 is 3 times. अच्छा, is asking for average drift velocity of free electrons. So इसका फॉर्मूला क्या होता है? I is equal to NAVE. This V stands for drift velocity. I have two formulas now in my hand. अच्छा, what's the formula for area which I had discussed in my class many times? एरिया का फॉर्मूला याद रखो, जो वायर होती है ना, किसी तार का एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। So I have two formulas in my hand. I can solve with one formula obviously. So मैं इसको हटा देता हूं, ये वाला फॉर्मूला बहुत लेंथी हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि वो तो कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लाओ ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है v। ऐसा करता हूं, v को सब्जेक्ट बनाता हूं बिकॉज ही वांट्स द रेशियो फॉर v। लुक, v इज इक्वल टू I अपॉन n a e। अब मैंने आपको क्या सिखाया, रेशियो कैसे बनाते हैं, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू I1 अपॉन n, तो 1 2 नहीं होता, a1 e के साथ भी 1 2 नहीं आता, I2 अपॉन n a2e। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, रेशियो मेथड। जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल कर दो, n काट देता हूं और e काट देता हूं। जो चीज बचती है उसकी रेशियो बनाता हूं, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू I1 अपॉन a1 अपॉन I2 अपॉन a2। दिस इज अ रेशियो। और हम जब नॉर्मल क्लासेस में मैथ्स, बेसिक मैथ्स डिस्कस करते हैं ना,
तो हम बताते हैं कि जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है वो ऊपर आके ना फ्लिप हो जाती है, तो I1 अपॉन A1 और ये हो जाएगा A2 अपॉन I2। यहां तक कॉपी करो, यहां तक कॉपी करो पहले। अगर तुम लोग कॉपी नहीं करोगे तो इस तरह के सवाल, ये खुद से लिखोगी नहीं मेरे साथ, तो देखो इस तरह के सवाल कभी नहीं होंगे। ये बहुत चैलेंज, देखो अच्छी खासी बड़ी वर्किंग है ये। इतनी वर्किंग तो ओ लेवल के पेपर 2 में होती थी, जहां पेपर 1 में हो रही है। अब तुम इसको रीअरेंज करो और मुझे हेल्प करो कि मैं इस फॉर्मूला को कैसे लिखूं। मेरे पास डेटा में करंट नहीं है, मेरे पास डेटा में करंट नहीं है, रेजिस्टेंस है मेरे पास। लुक, दिस इज द फॉर्मूला। अब हमने क्या पढ़ा है, जो हमारा ओम्स लॉ होता है, जो हमारा ओम्स लॉ है वो क्या है, व्हाट इज द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अब अगर मैं रेशियो बनाऊं V1 अपॉन V2, तो मैं करंट की जगह लिख सकता हूं I इज इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R2। डायामीटर एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई अपॉन 4 तो कट जाएगा, सो आई कैन राइट D2 अपॉन D1 होल स्क्वायर। जो वोल्टेज है वो पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वो पैरेलल का वोल्टेज कट गया। अब ये बन जाएगा R2 अपॉन R1 इंटू D2 अपॉन D1 होल स्क्वायर। अब मैंने फॉर्मूला आपके लिए बना दिया। आई हैव रीच्ड द फॉर्मूला, दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड। अब पढ़ो, रेजिस्टेंस ऑफ R2 इज 3 times the resistance of R1। R2 की रेजिस्टेंस 3 टाइम्स है, तो अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं। ऊपर वाले को कर देता हूं 3x और नीचे वाले को x कर देता हूं। द डायामीटर ऑफ R2, ऊपर वाले का D2, हाफ द डायामीटर ऑफ R1, तो आई विल यूज हाफ x अपॉन x होल स्क्वायर। I have cancelled it. I have a 3, 1 upon 2 square. 1 upon 2 square का मतलब है 1 upon 4. So it becomes 3 upon 4. Yes. पूरी वर्किंग को आराम से देखो, सुकून से, and you should understand that if you are just looking at the solution, you won't get anything until you are writing with me, until you are solving with me. हाँ, B is the right answer, right? But देखो, मुझे समझाना ये है कि ये सवाल एग्जाम्पल है कि कितनी बड़ी वर्किंग इसके पीछे करनी पड़ी हमें। It's not a small question, even though it's an MCQ, but we have to do a lot of work. So I always emphasize students that देखो कि तुम साथ लिखोगे नहीं, वर्किंग नहीं करोगे, लोग MCQ लिख के नहीं करते और सोचते रहते हैं कि मेमोरी से काम उस तरह चलता नहीं ए लेवल में। So anyways, we have done few questions today, and I always say that I want to go slow. I'm not actually willing to do many questions because असल मसला आंसर नहीं है, असल मसला वो अप्रोच सिखाना है कि आपको लिखना पड़ेगा। You have to write down, you have to write down your working to get the answer. We are keeping up to here, and we will be doing our work inshallah in tomorrow class. And this is over for today. Thank you. Allah Hafiz.